اداس تھی کیونکہ ہر بار کی طرح اس بار پھر اس کا انڈا خراب ہو گیا تھا۔ کتنی آشا لگائی تھی میں نے اس بار کہ اس بار میرے انڈے سے بچہ سوستھ نکلے گا، مگر اس بار بھی میرا انڈا خراب ہو گیا۔ اس بار تو میں ندی سے پانی پینے تک نہیں گئی، پھر بھی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میرے انڈے ہی خراب کیوں ہوتے ہیں؟ شاید میرے بھاگے میں سنتان ہے ہی نہیں۔ میں بہت بری ہوں، شاید ہی اس جنگل میں مجھ سے زیادہ کوئی بدقسمت ہوگا۔ چڑیا بیٹھی ایسے رو رہی تھی جب اس کا پتی دانا لے کر گھر آتا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ پھر چڑیا کے پتی کا دھیان ٹوٹے ہوئے انڈے پر جاتا ہے۔ کیا پھر سے وہی ہوا؟ ہاں، میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ میرا انڈا پھر سے خراب ہو گیا۔ چپ کر جاؤ، ایسے رونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں تو کئی دنوں سے ندی پر بھی نہیں گئی، آپ بیٹھے، میں ندی سے پانی پی کر آتی ہوں۔ پھر چڑیا ندی پر چلی جاتی ہے۔ اب ندی پر جا کر اکیلے میں بیٹھ کر روئے گی؟ میں کیسے اسے سمجھاؤں؟ یہ دکھ اس کا اکیلی کا نہیں، میرا بھی ہے۔ چڑیا ندی پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی جب وہاں لوسی کبوتری آ جاتی ہے۔ چڑیا، کیا ہوا؟ کیا پھر سے انڈا خراب ہو گیا؟ چڑیا بولے بنا ہی اپنا سر ہلا دیتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں، سنتان کے بنا گھر کھانے کو آتا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ رانو، میں تو کہتی ہوں تم اناتھالے سے کسی چڑیا کا بچہ گود لے لو، شاید تمہیں کچھ خوشیاں مل سکیں۔ میرا گھر سونا سونا ہے، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، میں روز مرتی ہوں، روز جیتی ہوں۔ تم چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ اناتھالے، ابھی کل ہی وہاں ایک چڑیا کا بچہ آیا ہے، تم اسے گود لے لو۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں اسے ماں کا پیار نہیں دے پاؤں گی۔ بچے خود ہی پیار لے لیتے ہیں، میرا کہنا مانو، تم میرے ساتھ چلو۔ پھر چڑیا لوسی کبوتری کے ساتھ اناتھالے چلی جاتی ہے۔ ہم یہاں بچوں کو بہت پیار سے رکھتے ہیں، آپ بھی اسے پیار سے رکھنا۔ سونا ہے نام اس کا، یہ نام اس کا ہم نے ہی رکھا ہے، جب یہ ہمیں ملا تو یہ بے نام تھا۔ یہ بچہ تو سچ میں بہت سندر ہے، دیکھو تو رانو، اس کی چونچ بھی تمہارے جیسی ہی ہے۔ پھر چڑیا وہ بچہ ساتھ لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ رانو، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہم پالیں گے اس بچے کو اور اسے اپنی سنتان ہی سمجھیں گے، پرنتو مجھے ایک ڈر ہے۔ کیا؟ آپ کو کیا ڈر ہے؟ یہی کہ کل یہ بچہ بڑا ہو کر ہمیں بھی ماتا پتا سمجھے گا یا نہیں۔ سگے ماں باپ بھی اپنی سنتان سے اپنے پالن پوشن کا بدلہ نہیں مانگتے، ہم اسے جو پیار دیں گے وہ بنا لالچ کے ہوگا۔ مجھے تو ابھی سے اس بچے سے پیار ہو گیا ہے۔ ہم بارش میں گھر واپس آ رہے تھے کہ میرے مما پاپا مر گئے، میں بہت رویا اور پھر بلبل آنٹی نے مجھے اناتھالے چھوڑ دیا، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا کہتے ہوئے وہ بچہ زور زور سے رونے لگ جاتا ہے۔ شاید اس بچے کا دل بھرا ہوا تھا اور وہ اپنے آنسو چھپائے ہوئے تھا، جو اب ایسے برس رہے تھے جیسے آسمان سے بارش کی بوندیں۔ مما چڑیا اس چھوٹے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ چپ کر جاؤ میری جان، آج سے ہم ہیں آپ کے مما پاپا، پھر کبھی نہ رونا، ہم ہیں نا، چلو اب ہنس کر دکھاؤ۔ ایسے وہ بچہ ان میں گھل مل جاتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور وہ بچہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگتا ہے، وہ سب بھول جاتا ہے، وہ سارے دکھ بھول جاتا ہے اور ایک نئی اور خوشیاں بھری زندگی کی شروعات کرتا ہے۔ سونے دیکھو تو
आज मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। भूजो तो माने, आज मेरे बेटे के पापा मेरे बेटे के लिए क्या लाए हैं? मीठा फल। मैं हार गया। हाँ, मैं अपने बेटे के लिए लाल मीठा फल लेकर आया हूँ। मैं जीत गया, मैं जीत गया। फिर वो बच्चा मीठा फल खाने लगता है। समय गुजरने का पता ही नहीं चलता। अभी 1 महीना ही हुआ था कि रानो चिड़िया एक अंडा देती है। वो बहुत खुश थी और थोड़ा डरी हुई भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारे अंडे से बच्चा जरूर निकलेगा। मेरा भाई, मैं अपने भाई से खेला करूँगा। लड़ोगे तो नहीं अपने भाई से? बड़ा भाई हूँ मैं, भला मैं क्यों लड़ूंगा अपने छोटे भाई से? फिर पापा चिड़िया हर रोज अपने परिवार के लिए मीठे मीठे फल लाता और मम्मा चिड़िया अपने अंडे का ध्यान रखती। कुछ दिन बाद उस अंडे से एक स्वस्थ और सुंदर सा बच्चा बाहर निकलता है। सोने, आपका भाई आ गया। मेरी जान, आपका कहना सच हुआ। अंडे से आपका भाई निकला है। अब मैं अपने भाई के साथ नदी पर जाया करूँगा और पापा के साथ भोजन की खोज करने भी। पापा चिड़िया भी घर आ जाता है। वो भी अपने बेटे को देख बहुत खुश था। ऊपर वाले ने हमें भी बेटा दे दिया। मैं ना कहता था, उम्मीद ना छोड़ो। पापा, मैं भी आपका बेटा ही हूँ। क्या आप भी मुझसे इतना ही प्यार करेंगे? क्यों नहीं बेटा, आपके आने से ही तो हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। दूसरे रोज मम्मा चिड़िया अपने बड़े बेटे सोने से कहती है, बेटा, मैं और आपके पापा बाहर जा रहे हैं, भाई का ध्यान रखना। फिर मम्मा और पापा चिड़िया घर से निकलते हैं। रानो, कहीं ऐसा न हो कि कल हमारा अपना बेटा बड़ा होकर सोने को अपना भाई स्वीकार ही ना करे। आप हमेशा ऐसी गलत सोच ही क्यों सोचते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों भाइयों में बहुत प्यार हो। सोना बहुत समझदार है, मुझे विश्वास है वो हमेशा हमारा बड़ा बेटा बनकर ही रहेगा। मगर पापा चिड़िया थोड़ा चुप चुप था। भोजन भी तो लाना होता है, हम कैसे दोनों में पूरा पूरा न्याय कर सकेंगे? आप छोड़ें इस बात को, मैं सब कर लूँगी। दिन और रात गुजरते गए। वो दोनों बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए थे। उन्होंने उड़ना भी अच्छे से सीख लिया था। चलो भाई, नदी पर जाते हैं, वहाँ जाकर छुपन छुपाई खेलेंगे। कितना प्यार है दोनों भाइयों में। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को देखकर ऐसा कहती है। वो दोनों भाई नदी पर चले जाते हैं। सोने भाई, ये देखें, ये चावल के दाने बड़े हैं, ये आप खा लें। नहीं भाई, मेरा पेट भरा हुआ है, आप ये चावल खा लें। मुझे सब पता है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप हर खाने की चीज मुझे दे देते हैं। मगर आज मैं भी अकेला नहीं खाऊंगा, चलो हम मिलकर खाते हैं। वो दोनों भाई एक दूसरे पर जान देते थे, बहुत प्यार था उनमें। मंत्री जी, आप तो जानते ही हैं, बहुत पैसा लगा है मेरी पढ़ाई में। विदेश से पढ़कर आया हूँ, पूरे 10 लाख लगे हैं मेरे डॉक्टर बनने में। अब इतनी भी क्या जल्दी है, आहिस्ता आहिस्ता 10 लाख पूरे कर लेना और फिर सारी जिंदगी कमाई ही करनी है। बस किसी तरह आप इस जंगल के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ना आने देना। अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं होगा तो सारे मरीज मेरे पास ही आएंगे। वो तो मैं कर लूँगा, कुछ तुम भी तो करो। मैं समझ गया, ये ले अपने 20,000। अब सरकारी अस्पताल से डॉक्टर भी गायब होगा और दवाइयाँ भी, और धंधा चलेगा कालू का डबल।
कालू कौवा बड़ा डॉक्टर तो बन गया था, परंतु वो तो कोई शैतान था। डॉक्टर कहाँ था, वो तो बहुत लालची था। तोते, आपको कालू डॉक्टर साहिब बुला रहे हैं। सुबह से 10 बार बुला चुका है। ये कालू डॉक्टर बार बार यही पूछता है, कोई मरीज अभी तक आया या नहीं। मैं कहाँ से मरीज पकड़ पकड़ कर लाऊं? तोते भैया, वो बड़ा डॉक्टर है, हमारी तो नौकरी है। आप जाकर उसकी बात सुन ले, ऐसा न हो कि वो हमें नौकरी से निकाल दे। जी सर, क्या बात है? 12 बज गए हैं और अभी तक कोई मरीज नहीं आया। सर, मैं दरवाजे की तरफ ही देख रहा हूँ सुबह से, अभी तक तो कोई मरीज नहीं आया। आजकल तो एक्सीडेंट भी बहुत कम हो रहे हैं। मेरे बेटे को बचा ले प्लीज चिड़िया, मेरे बेटे को बचा ले। मेरे बेटे के पेट में बहुत शदीद दर्द है। आप घबराए ना, मैं अभी बड़े डॉक्टर कालू कौवे को लेकर आती हूँ। सर, मरीज आ गया, बुलबुल के बेटे के पेट में दर्द है। फंस गया, शिकार फंस गया, मैं अभी उसे देखता हूँ। हाँ तो पेट में दर्द है कहाँ है भी छोटे बुलबुले? यहाँ मेरे पंख के पास। ये दर्द तो बहुत खतरनाक हो सकता है। बुलबुल, फीस जमा करवाएं, इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? डॉक्टर कालू जी, आप अच्छे से चेक तो कर लें, हो सकता है कोई और मसला हो। मैं कोई पागल हूँ? जल्दी से फीस जमा करवा दो, मैं अभी आकर ऑपरेशन करता हूँ। कौवा वापिस अपने ऑफिस में चला जाता है। बुलबुल बहन, मेरा नाम ना लेना, आपके बेटे ने कोई उल्टी सीधी चीज खाई है। आप इसे गर्म पानी पिलाएं, ये ठीक हो जाएगा। आप इसे यहाँ से ले जाएं। मम्मा, मैं अब ठीक हूँ, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे ले जाएं, मैं अब ठीक हूँ। बुलबुल अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू घंटी बजाता है। तोते भैया, जाओ, डॉक्टर कालू बुला रहे हैं। अब खुद ही जाओ, बुलबुल चली गई है और अब कालू के सवालों का जवाब खुद ही देना। जी सर। क्या फीस जमा करवा दी है बुलबुल ने ऑपरेशन की? सर, बुलबुल तो अपने बेटे को साथ लेकर चली गई है। उल्लू की पट्टी, सुबह से एक मरीज आया, वो भी तुमने चले जाने दिया? डॉक्टर साहिब, उसके बेटे का पेट दर्द ठीक हो गया था और वो चली गई। दर्द रुकने से पहले पहले तुमने फीस क्यों नहीं ली? दफा हो जाओ यहाँ से। अगर फिर से ऐसी गलती की तो किसी और को रख लूँगा। बहुत फिरती हैं तुम्हारे जैसी। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कालू जी, कितनी बनी आज की कमाई? आज तो 15,000 रुपए ही बने हैं। एक शिकार काबू आया था, वो छोटी चिड़िया नर्स की वजह से निकल गया। कालू जी, उसे चिड़िया की छुट्टी करवा दो, कोई और रख लो उसकी जगह। वो दोनों पति पत्नी ऐसे ही बैठे हुए थे कि उनका बेटा जग्गू भी आ जाता है। पापा, मेरी हैवी बाइक कहाँ है? मेरे बेटे की बाइक? ओहो, वो तो मैं भूल ही गया। क्या फायदा मुझे आपके डॉक्टर बनने का अगर आप अपने बेटे को एक बाइक ही नहीं लेकर दे सकते। इधर देखो, ये रही तुम्हारे बाइक की चाबियाँ। मुझे पता था मेरे पापा मेरी विश जरूर पूरी करेंगे। मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। अब आहिस्ता चलाना, ज्यादा तेज ना चलाना। दूसरे रोज कालू अपने अस्पताल में बैठा हुआ था कि चिड़िया और तोता घबराए हुए आते हैं। सर, जल्दी चलें, एक्सीडेंट हो गया है, कोई जवान बच्चा है, सर पर गहरी चोट आई है। तो फिर इतना घबराने की क्या बात है? मुझे तो लगता है तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग ही नहीं है। हमारे काम में ऐसे पक्षी आते ही रहते हैं। सर, वो बहुत सीरियस है,